CBSE Class 10th Mathematics Chapter 10 Exercise 10.2. Question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, we have to find out the distance of Q is given, that is 25 centimeter from the center, and PQ, that is the tangent, it is given, that is 24. We have to find the radius. So it is a right angle triangle. You see at the P, the angle is 90 degree. So this will be the hypotenuse and this will be your base. This is your perpendicular now. So 25 square minus 24 square का whole square root. This will become 25 plus 24. Say in the second bracket 25 minus 24. So 49 into 1, that is equal to 7. So 7 will be the correct option. Option number A is correct. Now proceed to the question number 2. In the figure, if TP and TQ are two tangents to a circle with the center O, so that POQ is 110 degree, then PTQ is equal to, we have to find out the PTQ. PTQ, angle which POQ is given, that is 110. So this angle plus this angle should be equal to 180 degree. These are the two supplementary angle. Angle POQ and PTQ are supplementary angle. Therefore, 180 minus 110, that will be the 70 degree. So, the angle PTQ is equal to 70 degree. Hence, the option B is correct. Now, proceed to the question number 3. If the tangent PA and PB from a point P to the circle with the center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to, we have to find out the POA. POA. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में this angle is 90, this is also 90 because the radius always subtend 90 degree at the point of contact, and P is the common point from where PA and PB are two common tangent has been drawn. So POA will be equal to POA will be equal to 90 minus, you see this is 90, so angle AOP and P and APO both are complementary angle. Once you, when you divide this OP will divide the angle 80 degree in two parts, two equal parts, means OP is the bisector of the angle P. So it will be the 40 degree. So hence POA is equal to 90 minus 40, that will be 50 degree. Hence the option A is the correct option. Question number 4. Prove that the tangent drawn at the end of the diameter of the circle are parallel. We have to prove there are two tangents which are drawn at the end of the diameter. डायमीटर के किनारे से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, यानी AOB is a diameter and A and B are the ends of the diameter. So the A and B are the point of contact for two different tangents. We have to prove that these two tangents are parallel. So given circle O, diameter AB, and PQ is a tangent at A and RS is a tangent at B. To prove करना हमारे को PQ is parallel to RS. Prove OAP
and OBS, OPA, OAP, OAP and OBS are 90 degree because the radius obtained 90 degree at the point of contact with respect to tangent. So these are the two right angles, therefore, and these are the alternate angles. Here the alternate angles are equal, therefore PQ and RS are parallel. Now proceed to the question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Given that QR is a tangent to a circle O, P is a point of contact and PE is perpendicular to QR. PE is perpendicular to QR. We have to prove that PE passes through the center O. हमें ये दिया हुआ है कि PE जो है परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. हमें प्रूव करना है कि PE जो है इट विल पास थ्रू द सेंटर O. सेंटर O से ही गुजरेगा. हमें ये प्रूव करना है. प्रूव देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट इज P will pass through O or not. There are two possibilities. PE या तो O से पास होगा या O से पास नहीं होगा. यदि O से पास होता है तो हमारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सपोज करो कि नहीं पास होता है तो क्या होगा. PE will pass through the O or not. Let us assume that PE is not passing through the center O. हम उसका कंट्रेरी ले लेंगे या सपोज करेंगे. So देखिए आप OPR is 90 degree. The radius is perpendicular at the point of contact to the tangent. And EPR is equal to 90 degree by construction. PE coincide with PO. Hence, the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Now, question number 6. The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. अब देखिए यहाँ पर Q is a point outside which is 5 cm away from the center of the circle O, and PQ is given, that is 4 cm. The length of the tangent is 4 cm is given. इसी OP रेडियस फाइंड आउट करना है. OQ क्या है 5 cm है. PQ क्या है 4 cm. रेडियस OP will be equal to 5 square minus 4 square. 5 plus 4 into 5 minus 4 का स्क्वायर रूट equal to 9 into 1, that is equal to 3. So the radius will be 3 and it will be the answer of the question number 6. Now question number 7. Two concentric circles of radii 5 and 3 centimeters. Find the length of the chord of the larger circle which touches the स्मॉलर सर्किल. दो कंसेंट्रिक सर्किल है. कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब एक ही सेंटर है. एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 5 सेंटीमीटर. लार्जर सर्किल के एक कार्ड खींचा गया है, कार्ड विच इज AB. AB इज द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, मीन्स द सर्किल विच इज हैविंग अ रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो it is a tangent to the smaller circle, means जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, उसको C पर वो टेंजेंट है. अब देखिए यहाँ पर OC क्या हो गया 3 सेंटीमीटर,
ओ बी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया बी सी निकालना हमारे को, तो बी सी विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो 5 प्लस 3 5 माइनस 3, सो रूट 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब बी सी आपका 4 सेंटीमीटर आ गया बी सी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर या एनी कार्ड को जो रेडियस कट करता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये इट विल बी जो ये कट करेगा वो क्या है दो इक्वल पार्ट में करता है, देयरफॉर द कार्ड लेंथ ऑफ द कार्ड ए बी विल बी ट्वाइस ऑफ 4 सेंटीमीटर, मीन्स 2 into 4 that is equal to 8 centimeter. So question number 7, the answer is 8 centimeter. Now let us proceed to question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. हमें प्रूव करना है, ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्किल को, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी मीन्स अपोजिट टू साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल टू द सम ऑफ द अदर अपोजिट टू साइड्स। ए डी प्लस बी सी हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब देखिए प्रूफ में ए पी, अभी हमारे को देखिए पॉइंट ए है, ए से कॉमन टेंजेंट दो ड्रा किया गया है, ए पी और ए एस। बी से क्या है बी पी और बी क्यू, दीज आर द टू कॉमन टेंजेंट। सी से क्या है सी आर एंड सी क्यू, और डी से डी आर एंड डी एस, दीज आर द कॉमन टेंजेंट फ्रॉम ए बी सी एंड डी टू द सर्किल। वो उस समय क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन मीन्स जी आर विल बी इक्वल टू डी एस, ए पी विल बी इक्वल टू ए एस, और पी बी इज इक्वल टू पी बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब चलो हम इसको ऐसे करते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू से कॉमन टेंजेंट फ्रॉम ए, जो कॉमन टेंजेंट फ्रॉम ए है वो ए है, स्मॉल ए। उसी तरह से बी से हमने ले लिया कॉमन टेंजेंट को बी, सी से ले लिया स्मॉल सी, डी से ले लिया स्मॉल डी। चलिए अब हम क्या करते हैं, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी लिखते हैं। तो ए बी का लेंथ देखिए यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, और सी आर और सी डी का क्या है सी प्लस डी। तो ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी स्मॉल डी, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी that will be equal to a plus d plus b plus c. From first and second we have AB plus CD is equal to AD plus BC, that is equal to A plus B plus C plus D. Hence it is proved. Now question number 9. In figure, XY and XY are two parallel tangents. XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with the center O, and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B
prove that angle AOB is 90 degree. We have to prove that angle AOB is 90 degree. There are two tangents which are common, which are parallel to each other. You see, XY is a tangent at the point of contact P, and X dash Y dash is the tangent at the point Q. And these two lines are parallel. These two tangents are parallel. There is another tangent AB whose point of contact is C. हमें प्रूव करना है कि AOB is 90 degree. Let us see in triangle. Let us OAP in triangle OAP and OAC. अब ये कॉमन टेंजेंट है पोर्शन AP और AC दोनों इक्वल होगा, AP और AC इक्वल होगा. साथ ही साथ देखिए OC इज इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल. और ये साइड में क्या है, ये दोनों में कॉमन है, OA कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है. देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया, SSS criteria of congruency. Hence, angle AOC and AOP are equal. Similarly, we can prove that COB and QOB are equal, that is BB. Here I have written B and B. Now hence A plus B plus B. अब देखिए इधर से प्लस कीजिए, P की जो है डायामीटर है, P की इज अ डायामीटर. Why it is a diameter? Because this is a 90 degree and this is also 90 degree. So these are the parallel line, alternate angles are equal. So small a plus small b, small b, these are the angles. इन चारों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा. देखिए मैंने लिखा है a plus b, that is 180 degree. Therefore QOP is a diameter. Because QOP is a diameter. So the twice of AB, you see, इसको लिख दिया मैंने twice of A plus B, that is equal to 180 degree. Therefore the A plus B is equal to 90 degree. Now therefore the angle AOB is equal to 90 degree. Proved. Now proceed to the question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Now see the question number 10 को देखिए. Given PA and PB are common tangent from the point P. इस पॉइंट P से PA and PB दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया है टू ए सर्किल O. हमें प्रूव करना है, टू प्रूव द एंगल AOB plus APB हमें प्रूव करना है कि APB प्लस AOB दोनों का सम जो होगा सप्लीमेंट्री होगा या 180 डिग्री होगा. प्रूफ में देखिए इन ट्राइंगल OAP
in triangle OAP, OAP is 90 degree. OAP is 90 degree. Therefore, AOP plus APO, APO is complementary angle. देखिए कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, AOP, AOP और APO। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री होता ही है, शेष दो एंगलों का सम भी 90 डिग्री होगा। क्यों? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, उसमें से एक 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब रिमेनिंग दो एंगल को सम करोगे तो वो 90 डिग्री होगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर AOP प्लस APO 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली BOP और BPO is equal to 90 degree. Now adding first and second, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड करने पर, सो AOP, देखिए AOP प्लस BOP प्लस APO plus BPO is equal to 90 plus 90, that is equal to AOB। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, AOP और BOP, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, AOB आएगा, AOB बीच का। उसी तरह से APO प्लस BPO, APO और BPO, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बीच वाला एंगल आएगा जो APB होगा, वो APB। इन दोनों को प्लस करके देखा 90 प्लस 90, हेंस इट इज 180 डिग्री, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। हमें एक प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम जो है सर्किल के चारों तरफ से है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ABCD is a parallelogram which circumscribing the given circle O, whose center is O, let the point of contact, that is PQRS. Again, AP and AS will be equal. Why it will be equal? Because it is a common tangent from A to the same circle, therefore the common tangents are equal. From B also, BP is equal to BQ, that is BB. From C it is CR and CQ are equal, that is C। D से हमने ये किया, ठीक है। टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है रोम्बस। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एडजेसेंट साइड जो है मीन्स AD प्लस AB दोनों इक्वल है, AB और A इक्वल टू AD, और AB इज इक्वल टू BC और DC इज इक्वल टू BC। अगर टू एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, देयर इज नो डाउट इन इट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। पहले से बता दिया है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो अपोजिट साइड्स है दोनों इक्वल होगा। अब हमारे को प्रूव करना है कि इट इज ए रोम्बस। रोम्बस तो कब हो सकता है, जब टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। लेट अस सी, AB इज इक्वल टू CD, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB की जगह पर हमने क्या लिखा है, AB की जगह पर A प्लस B, CD की जगह पर क्या लिखा है, C प्लस D। मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, पहला इक्वेशन हो गया। AD इज इक्वल टू BC,
AD इज इक्वल टू BC, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। देयरफॉर A प्लस DE इज इक्वल टू B प्लस C। On adding first and second, we have AB plus AD. AB plus AD that is equal to CD plus BC। चलिए AB का लिखिए A प्लस B, AD का लिखिए A प्लस D। यहाँ पर CD C प्लस D, BC B प्लस C। अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो दोनों को एक और एक साथ 2A प्लस ब्रैकेट में लिखिए B प्लस D, 2A प्लस B प्लस D मीन्स 2A है, दोनों A को एक साथ में लिख दिया 2A और B प्लस D एक साथ ब्रैकेट में बनाकर लिख दिया इक्वल टू 2C हो गया और B प्लस D। अब B प्लस D दोनों तरफ है, B प्लस D को तो कैंसिल कर दिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया 2A इज इक्वल टू 2C। देयरफॉर 2 कैंसिल कर दीजिए, A इज इक्वल टू C हो गया। नाउ अगेन AB प्लस BC, AB प्लस BC, हमने 2 एडजेसेंट साइड लिया है, AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो AB की जगह पर हमने क्या लिखा है A प्लस B, BC की जगह पर क्या लिखा हमने B प्लस C। तो यहाँ पर क्या आ गया, और इधर AD के जगह पर हमने क्या लिखा A प्लस D और CD की जगह पर लिखा D प्लस C। AB प्लस BC इज इक्वल टू AD प्लस CD। अब देखिए इधर यहाँ पर 2B है, 2B एक साथ में लिख दिया, A प्लस C एक साथ में लिख दिया, तो A प्लस C इन द ब्रैकेट प्लस 2B इक्वल टू A प्लस C प्लस 2D। यहाँ पर देखिए 2D है तो A प्लस C कैंसिल हो गया। दैट विल 2B विल बी इक्वल टू 2D, स्मॉल 2B इज इक्वल टू स्मॉल 2D, दैट इज B इज इक्वल टू D। नाउ कंपेयरिंग एनी 2 एडजेसेंट साइड्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अब हम कंपेयर करेंगे। हमने प्रूव कर दिया कि A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D, स्मॉल b इज इक्वल टू D। नाउ कंपेयरिंग एनी 2 एडजेसेंट साइड्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ए बी क्या है देखिए आप, ए बी इज इक्वल टू A प्लस B और ए डी क्या है, इसका एडजेसेंट साइड है ए डी, दैट इज A प्लस D। अब हम क्या करेंगे कि A किसके बराबर है, या सॉरी B किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए B इज इक्वल टू D है। तो हमने क्या किया, A प्लस B के जगह पर क्या लिख दिया, A प्लस D लिख दिया फ्रॉम फोर्थ। मैं लिखा हूँ फ्रॉम फोर्थ मीन्स फोर्थ से ये होगी। यहाँ पर देखिए ए डी इज इक्वल टू क्या है, A प्लस D है, तो इसको हमने एज इट इज रखा क्योंकि हमारे को A प्लस D दोनों तरफ आ गया। अब देखिए AB और AD क्या चीज़ है, एडजेसेंट साइड है। ये भी A प्लस D के बराबर है, ये भी A प्लस D के बराबर है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD, कैपिटल AB इज इक्वल टू AD मीन्स सम ऑफ सॉरी 2 adjacent sides of parallelograms are equal, hence all the sides are equal here. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So ABCD is a rhombus. Rhombus में क्या कंडीशन होता है, all sides are, it is a parallelogram, side by side it is a, all sides are equal. रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है लेकिन उसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं और हमने सभी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम के। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 12। एरिया ऑफ द ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्किल ऑफ रेडियस r। द एरिया ऑफ ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्किल,
देखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसका सर्कमस्क्राइब कर रहा है ए बी सी एक ट्राइंगल जो है इट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल whose center is O. Area of triangle circumscribed a circle of radius R is equal to small s into R. What is small s? That is a perimeter of the half perimeter of the triangle. S stands for half of the perimeter of the triangle, where S is equal to A plus B plus C by 2. Small a क्या है? It is the sides of the triangles. Means कैपिटल A के ठीक अपोजिट वाले साइड को हमने A लिखा है, B के अपोजिट साइड्स को B, C के अपोजिट साइड को C, स्मॉल c. उन तीनों को प्लस करने पर 2 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू होगा S. मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर. ए इज इक्वल टू, अब देखिए ए क्या दिया हुआ है, ए के ठीक अपोजिट में 6 और 8 दिया हुआ है. इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा 14. तो ए इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14 हो गया. और ए सी देखिए ये ए सी क्या हो गया, हमने बोला कि भाई ए से कॉमन टेंजेंट है ये, देयरफॉर ए ई और ए एफ दोनों इक्वल होगा. लेट इट बी इट इज एक्स. हमने क्या ले लिया, सपोज कर लिया है कि ए ई और ए एफ एक्स है, दोनों इक्वल है, सो एक्स हो गया. तो ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 तो दिया ही होगा. सी ई लेंथ दे रखा है, इट इज 6 सेंटीमीटर. सो ए ई एक्स हो गया और ई सी 6 दिया हुआ है. सो ए सी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 6. उसी तरह से सिमिलरली ए बी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 8. दैट इज स्मॉल सी. सो आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. So A is equal to 4, B is equal to x plus 6, C is equal to x plus 8. So small s निकालिए वैल्यू, 14 plus x plus 6 plus x plus 8 होल डिवाइडेड बाई 2. आपको रिजल्ट जो मिलेगा x plus 14 मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है, half of the perimeter of the triangle is equal to x plus 14. So area of the triangle ABC is equal to, जो फार्मूला दिया हुआ है ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इनटू रेडियस ऑफ इन सर्किल मीन्स जो सर्किल सर्कमस्क्राइब्ड है, या इन सर्किल को इसको कहते हैं, या वो इज द इन सेंटर, or it is always represented by small letter r, the radius of inner circle. So area of the triangle ABC is equal to x plus 14 into 4 centimeter. x plus 14 ब्रैकेट में into 4 क्या है, रेडियस है, और x plus 4 क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है. बाई यूजिंग द हीरोन फार्मूला. अब चलो फिर अब क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन फार्मूला से, बाय यूजिंग द हीरोन फार्मूला. तो हीरोन फार्मूला है क्या, ए बी सी. देखिए रूट ऑफ सम ऑफ द हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या है, एक्स प्लस 14. तो एक्स प्लस 14 लग दिया. एक्स प्लस 14 माइनस 14, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा हूँ मैंने x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ये वाला साइड माइनस किया है. फिर x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, इसको सॉल्व किया हमने. देखिए जो कट गया मैं कैंसिल कर दिया हूँ, x कैंसिल हो गया. 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8, 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6, और x प्लस 14 इधर से देखिए 14 माइनस हो गया, तो केवल x बचा. तो x प्लस 14
into x into 8 into 6. From first and second, फर्स्ट आपका ये है एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ABC. It is equal to the area of the, or it is equal to the area of the same triangle ABC. These two areas must be equal. From first and second we have, तो ये देखिए x plus 14 plus 4 is equal to root of x plus 14 into x into 8 into 6. अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग. ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, जैसे स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 6 या 48 इंटू 48 मैंने लिख दिया इधर. अब देखिए 4 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होता है. 16 को काटा हूँ मैं, इधर 48 को काट कर 3 कर दिया हूँ. इधर x प्लस 14 है, इसका होल स्क्वायर है. इधर x प्लस 14 है, x प्लस 14 को कैंसिल किया हूँ, इसका स्क्वायर हटाया हूँ, 2 स्क्वायर को कैंसिल कर दिया. अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, x प्लस 14, बस x प्लस 14 बचा है. इधर देखिए क्या बचा है, 3 इंटू एक्स. सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14. 2x इज इक्वल टू 14 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7. तो ए बी का लेंथ क्या होगा, x की वैल्यू आ गई हमारे को 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर. उसी तरह से ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा, ए सी विल बी इक्वल टू 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. एंड दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12. Now proceed to the question number 13. Prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle obtain supplementary angle at the center of the circle. हमें प्रूव करना है, prove the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle obtained supplementary angle at the center of the circle. अब देखिए यहाँ पर quadrilateral ABCD circumscribed the circle O मीन्स जिसका सेंटर O है, उस सर्किल को ये ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है इसको सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब चारों तरफ से घेर रखा है. टू प्रूव एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOD और BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैंने दोनों का एंगल ए बी के द्वारा जो सबटेंड किया गया है एंगल सेंटर पर, और सी डी के द्वारा अपोजिट साइड्स का, इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा एट द सेंटर. हमें ये प्रूव करना है. उसी तरह से ए डी वो भी 180 होगा. अब देखिए 180 मिलाकर के 360 हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को ज्वाइन कीजिए किसे, विथ सेंटर O. हर एक के पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को ज्वाइन कीजिए, ये कंस्ट्रक्शन आप कीजिए. प्रूव इन ट्राइंगल्स AOP एंड AOS, इस दो ट्राइंगल में हम लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा. AOP और AOS, AP इज इक्वल टू AS, कॉमन टेंजेंट है फ्रॉम द पॉइंट A. OP इज इक्वल टू OS, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल. OA इज इक्वल टू OA कॉमन है. देयरफॉर ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS आर
congruent by SSS criteria. Hence, the triangle AOP will be equal to angle AOS. अब उसको हमने क्या किया है, स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया है, ध्यान दीजिएगा। AOP और AOS को स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया है मैंने। से मीन्स सपोज this is equal to A. Similarly, we can prove BOP is equal to BOQ, that is B, say B. COD is equal to COR, that is equal to small c. And DOR and DOS is equal to small d. हमने सेम इन सपोज किया है कि ये एंगल जो इक्वल है वो A है, ये B है, ये C है और ये D है। चलिए सम करते हैं इनका, सम ऑफ दिस ट्रायंगल्स कंप्लीट। 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D, देखिए स्मॉल लेटर है इसमें, ध्यान दीजिएगा। 2A 2B, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं इधर, तो हमारे को क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे को ये मिल गया कि सम ऑफ एंगल ABCD is equal to 180 degree. Now the angle subtended by the opposite sides of the quadrilateral. अब हम चलते हैं। Now the angle subtended by the opposite sides of the quadrilateral AOB and COD means A plus B. COD that is C plus D is equal to 180 degree. हमने यहाँ पर प्रूव किया है 180 डिग्री। उसी तरह से AOD और BOC A प्लस D प्लस B प्लस C मीन्स हमने यही प्रूव किया अभी ऊपर। सो फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया है, फ्रॉम फर्स्ट, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल subtended the angle and its sum is equal to 180 degree. Hence it is proved that the angle subtended by the opposite sides, some angle subtended by the opposite sides of the quadrilateral at the center of the circumscribed circle will be equal to 180 degree or supplementary. The proof of the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Hence it is proved.